So now in this lecture we are going to see the representation of polygon. So the representation of polygon in system depends on three graphics packages, or the representation of polygon in system depends on the graphics packages. So depending on that, there are three types of representation. First is polygon drawing primitive approach, second is trapezoid primitive approach, and line and point approach. Now what happened inside this representation, that we will see. Okay, now if we see the first, that is polygon drawing primitive approach, तो इसमें क्या होता है कि some of the graphics packages supports polygon so as the basic image shape. तो अगर कुछ ग्राफिक्स पैकेजेस सपोर्ट करते तो उसमें पॉलीगॉन ड्रॉ करना इट्स वेरी इजी. ठीक है, और वी कैन से सम डिवाइसेस polygon is saved as a unit. So directly draw polygon shapes such as draw poly number underscore vertices comma array. तो कोई कोई ग्राफिक्स पैकेजेस में क्या है, पॉलीगॉन एज अ यूनिट सेव होता है, तो उसके जो भी पैकेज है दैट इज़ ड्रॉ पॉलीगॉन, जो भी फंक्शन है वो डायरेक्टली अगर हम लोग कॉल करते हैं तो इट विल डायरेक्टली ड्रॉ द शेप ऑफ दैट पॉलीगॉन. सो दिस इज़ नथिंग बट द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ पॉलीगॉन ड्राइंग प्रिमिटिव अप्रोच. ठीक है, नाउ ट्रैपेजॉइड प्रिमिटिव अप्रोच में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सम ग्राफिक्स packages polygon is approximated as a set of trapezoid primitives. For example, it is formed from the two scan line segments. So trapezoids are drawn by stepping down the line segment. ठीक है, so suppose this is the trapezoid, this can be drawn by approximating the set of primitives, ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव्स. जैसे कि ये जो भी है उसके बीच में अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप जिसमें कि क्या होता है, सम ग्राफिक्स पैकेज इसे सपोर्ट करते हैं एंड पॉलीगॉन इज अप्रोक्सीमेटेड एज अ ट्रेपेजॉइड प्रिमिटिव्स. ठीक है, नाउ थर्ड इज़ द लाइन एंड पॉइंट अप्रोच. तो इसमें क्या होता है, trapezoid or the polygon is specified by the endpoint coordinates. So the line is generated between the successive endpoints to form a polygons. Means line segment, different line segments ऐसे जो भी है, जितने भी, जैसे line segment किसे बोलते हैं, two points joined by using the line, that we called it as a line segment. ठीक है, तो इसमें क्या है, line segment different सेव होते हैं एंड अगर हम लोग वो line segment के end points जो है वो successive end points अगर हम लोग join करते हैं तो it will form the polygon. For example, suppose this is one line segment, this is another line segment. तो अगर ऐसे लाइन सेगमेंट से होते अलग अलग, तो ये जब हम लोग ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट, सक्सेसिव लाइन सेगमेंट, सो इट विल फॉर्म अ पॉलीगॉन. Clear? So this is the line and point approach. So the most of the graphics devices not provide any polygon support at all. So in this case the polygon can be broken into lines and points. Points means these vertices we called it as a points and this is called as a line, and store the full polygon in the display file, and the display polygon is then done by using the command. Clear? So line and point approach में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट सेव होते हैं एज अ कोऑर्डिनेट एंड वो जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है उसे अगर हम लोग सक्सेसिवली ज्वाइन करते हैं तो इट विल फॉर्म अ पॉलीगॉन. ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्राफिक्स पैकेजेस डज नॉट सपोर्ट एनी टाइप ऑफ पॉलीगॉन. Clear? So in this case this approach is very much useful. Clear? Now next topic is
inside test. Next topic is nothing but the inside test. Now inside test is what, कि हमें क्या करना है कि जो भी लाइन सेगमेंट हम लोग पॉलीगॉन के अंदर ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट इनसाइड है और वो पॉइंट इनसाइड है पॉलीगॉन के या आउटसाइड है, ये डिसाइड करना, दिस इज़ कॉल्ड एज इनसाइड टेस्ट. कि डिटरमाइन करना वो पॉइंट पॉलीगॉन के अंदर आता है, मीन्स इन बिटवीन आता है और आउटसाइड आता है, दैट इज़ नथिंग बट द इनसाइड टेस्ट. तो वंस द पॉलीगॉन इज एंटर्ड इन द डिस्प्ले फाइल वी कैन ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द पॉलीगॉन. जैसे ही डिस्प्ले फाइल के अंदर आता है हम लोग उसका आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे. बट to show the polygon as a solid object or the filled object, we have to set the pixel inside the polygon as well as the pixel on the boundary of it. Now after that we have to decide whether or not that point is inside the polygon. Clear? इसके बाद क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है. Now the question is how to determine whether or not a point is inside a polygon. पॉइंट और पिक्सल जो भी हमने यहाँ पे कंसीडर किया है वो इनसाइड द पॉलीगॉन है या नहीं, वो हमें चेक करना है. दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट. सो इनसाइड टेस्ट जो है वो डिटरमाइन करेगा, राइट. सो इनसाइड टेस्ट डिटरमाइंस वेदर अ पॉइंट which is to be tested, जो भी पॉइंट हमें टेस्ट करना है वो पॉइंट इज़ इनसाइड और आउटसाइड द पॉलीगॉन. जो भी पॉइंट हमें टेस्ट करना है वो इनसाइड है या आउटसाइड है पॉलीगॉन के, वो चेक करेगा बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स. क्लियर. सो इनसाइड टेस्ट क्या है, अगर हम लोग पॉलीगॉन वंस द पॉलीगॉन इज इंटर्ड इनटू द डिस्प्ले फाइल तो उसके आउटलाइन वो क्या कर देगा, ड्रॉ कर देगा. नाउ टू शो द पॉलीगॉन एज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट हमें क्या करना होगा, एक पिक्सल इनसाइड कंसीडर करना होगा और एक बाउंड्री वाला कंसीडर करना होगा, राइट. नाउ पिक्सल और वी कैन से द पॉइंट, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू डिटरमाइन whether or not that point is inside the polygon. So ये जो डिटर्मिनेशन है कि वो पॉइंट इनसाइड है या नहीं पॉलीगॉन का, वो इनसाइड टेस्ट के थ्रू किया जाएगा, ठीक है. तो बाय यूजिंग सम फॉलोइंग मेथड्स. सो इन दैट फर्स्ट मेथड इज दैट even odd method. So using two methods here it can be shown. So first is using following two methods we can say. First is the even odd method and the second one is nothing but the winding number method. ठीक है. So first we will see first method that we will see first, that is even odd method. Now what is this even odd method? So what is this? That is one simple method of doing this is to construct a line
construct a line segment between the point in question and a point to be outside the polygon. What is the meaning of this? One simple method of doing this is to construct a line segment between the point in question and the point to be outside the polygon. एक point तो outside the polygon होगा और एक point जो हमें determine करना है inside है या outside है, वो point हम लोग consider करेंगे और उसके बीच में line segment draw करेंगे. ठीक है. So in this method, number of intersection area counted if there are odd number of intersection, that is 1, 3, 5 and etc., then point is inside the polygon, and if there are even number of intersection, for example 2, 4, 6, then point is outside. ठीक है. सो क्या होगा इन दिस मेथड, द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एरिया जो भी हम लोग काउंट करेंगे, अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑड है देन दैट पॉइंट रिसाइड्स इनसाइड द पॉलीगॉन. अदरवाइज अगर वो इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है तो वो पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड द इंटरसेक्शन होगा. ठीक है. सो दिस मेथड ऑल्सो नोन एज द काउंटिंग नंबर मेथड. सो दिस मेथड also known as counting number method. For example, we'll see. So see here, even odd method क्या है कि उसमें हमने पहले क्या कंसीडर किया है कि जो भी लाइन हमें कंस्ट्रक्ट करनी है उसमें से एक लाइन सेगमेंट हमने जो भी क्वेश्चन में है वो कंसीडर किया है एंड एक पॉइंट जो भी है वो आउटसाइड द पॉलीगॉन कंसीडर किया है. ठीक है. जब हम लोग नंबर ऑफ इंटरैक्शन काउंट करेंगे और वो अगर ऑड होता है देन वी कॉल्ड कि पॉइंट इज़ इनसाइड द पॉलीगॉन. अगर वो इंटरसेक्शन एरिया काउंट जो है वो अगर पॉजिटिव है, इवन है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, दैट पॉइंट रिसाइड्स आउटसाइड द पॉलीगॉन. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एक पॉलीगॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. सम लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें. सो ये एक पॉलीगॉन ड्रॉ किया हमने, इसमें लाइन ड्रॉ की. नाउ हमें क्या करना है, कितने टाइम्स वो इंटरसेक्शन करती है इसमें, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. जैसे ये जो लाइन है वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे. तो कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, दैट इज़ इवन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट.
ये कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉलीगॉन को? ओनली वन टाइप, सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑड टाइप, राइट? सो ये कितने टाइम कर रही है इंटरसेक्ट? 1 2 3, सो दिस इज ऑल्सो ऑड, राइट? ये कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रही है? काउंट 2, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज इवन, ठीक है? सो जैसे कि ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन अगर होता है तो वो पॉइंट हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? इनसाइड द पॉलीगॉन कंसीडर करेंगे, अगर इवन है तो वो आउटसाइड द पॉलीगॉन कंसीडर करेंगे। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इवन ऑड मेथड ऑफ फाइंडिंग whether that point reside inside the polygon or outside the polygon. Now in this also we have to consider some special cases in even odd method. So what are that special cases? So first, if the intersection point is vertex of the polygon, अगर वो जो इंटरसेक्शन पॉलीगॉन, ठीक है, अगर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अगर वर्टेक्स है पॉलीगॉन का, तो देन वी हैव टू लुक एट द other endpoints of the two segments which meet at this vertex, ठीक है? अगर वो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर ये वर्टेक्स है पॉलीगॉन का, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? जो भी अदर एंड पॉइंट्स है उस लाइन सेगमेंट के जो इस वर्टेक्स पे मीट कर रहे हैं उसे चेक करना होगा, ठीक है? नाउ इफ दिस पॉइंट्स lie on the same side of the constructed line, then the point in question counts as and twice. अगर सेम साइड में है, इस वर्टेक्स के अगर सेम साइड में है तो हमें उस पॉइंट को ट्वाइस काउंट करना है, ठीक है? जब हम लोग काउंट करेंगे उसका इंटरसेक्शन, ठीक है? ट्वाइस ऑफ इंटरसेक्शंस। अगर वो अपोजिट साइड में है तो हमें कितने बार उसे काउंट करना है? एक ही बार काउंट करना है, ओके? सो इफ दे लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कंस्ट्रक्टेड लाइन, तो हमें क्या कंसीडर करना है उसे? देन the point is counted as single intersection, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये कंसीडर करते हैं, वही शेप हम लोग लेते हैं, ठीक है? यही शेप लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो लाइन है वो हम लोग ये वर्टेक्स से पास करते हैं, ठीक है? ये लाइन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ये लाइन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? दो पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है, ठीक है? अभी ये एक कंसीडर करेंगे और ये वाला एक कंसीडर करेंगे, ठीक है? Now
ये जो लाइन है यहाँ से जा रही है और एक लाइन जो है वो यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो सी हियर, यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन है राइट, तो यहाँ पे ये कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस आ रहे हैं राइट, सो इट इज़ रिसाइडिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। इसके जो भी दो एजेस है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है राइट। सो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे काउंट कितने बार करना है उस इंटरसेक्शन को, सिंगल टाइम। क्यों, बिकॉज ये जो है जो पॉइंटेड वर्टेक्स है वो क्या है, जो इंटरसेक्शन है ये क्या है, वर्टेक्स है, एंड पॉइंट वर्टेक्स है ऑफ दिस पॉलीगॉन, ठीक है। अगर ये एंड पॉइंट वर्टेक्स है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर ये एंड पॉइंट वर्टेक्स बाकी जो दो लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे ये एक डायरेक्शन में है और वी कैन से अपोजिट साइड में है, ये एक साइड में है और ये दूसरे साइड में अपोजिट साइड में है, तो इसे क्या करेंगे, एक ही टाइम ऑफ इंट्रैक्शन इसे काउंट करेंगे, सिंगल इंट्रैक्शन काउंट करेंगे। और यहाँ पे देखो ये भी क्या हो रहा है, एंड पॉइंट टर्मिनल वर्टेक्स से जा रहा है राइट, और पॉलीगॉन के वर्टेक्स से ये लाइन पास हो रही है, लेकिन यहाँ के जो अदर पॉइंट अदर लाइन सेगमेंट है जिससे ये अटैच्ड है वो क्या है, ऑन रिसाइड्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में है। तो इस इंटरसेक्शन को हम लोग कितने बार काउंट करेंगे, 2 टाइम्स काउंट करेंगे। क्लियर, कितने बार काउंट करेंगे इसे हम लोग, 2 बार काउंट करेंगे, ठीक है। क्लियर, so counts even and this counts as odd, एक बार काउंट करेंगे और इसे 2 बार काउंट करेंगे। सो these are the special cases of this even odd method। क्लियर, कब आते हैं ये, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ द वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये पॉलीगॉन का वर्टेक्स है तो क्या होगा, अगर ये दोनों भी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो रिसाइड्स ऑन अपोजिट साइड्स तो इसे 2 बार काउंट करेंगे, और अगर एक ही साइड में है तो 1 टाइम काउंट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नथिंग बट नेक्स्ट इनसाइड टेस्ट मेथड इज वाइंडिंग नंबर मेथड राइट। वाइंडिंग नंबर, सो यहाँ पे एक तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो की होगी, या हम लोग बोलेंगे द डायरेक्शन नंबर इज गिवन। एक तो डायरेक्शन को नंबर दे सकते हैं हम लोग, या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन एजेस को which indicates the direction, जो भी पॉलीगॉन के एजेस है उसके डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग एक तो नंबर्स देंगे या फिर उसे बोलेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स देते हैं तो क्या होगा, गिव डायरेक्शन नंबर एज फॉलोज, ठीक है। अगर दिस साइड है तो +1 नंबर देंगे और दिस साइड है तो -1 नंबर देंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या होगा, वी हैव टू टेक सम ऑफ दिस डायरेक्शन नंबर्स, we have to take sum of this direction number of those lines which crosses by construction line, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, उस डायरेक्शन लाइन के हमें नंबर्स की सम करनी होगी जो क्रॉसेस बाय दिस कंस्ट्रक्शन लाइन होगा, ठीक है। दैट इज ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट इन क्वेश्चन।
अगर दैट सम इज कॉल्ड वाइंडिंग नंबर, उस सम को क्या बोला जाता है? वाइंडिंग नंबर ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट का उसे क्या बोला जाता है? वाइंडिंग नंबर बोला जाता है। द पॉइंट इज सेड टू बी इनसाइड, इनसाइड कब बोलेंगे? व्हेन दिस वाइंडिंग नंबर वैल्यू ऑफ दिस वाइंडिंग नंबर इज नॉन ज़ीरो, ज़ीरो से ऊपर होनी चाहिए। अगर द पॉइंट इज सेड टू बी इनसाइड कब बोलेंगे? व्हेन द वाइंडिंग नंबर इज नॉन ज़ीरो। क्लियर? अगर वो ज़ीरो है या फिर उससे लेस है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? आउटसाइड है करके बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सम काउंट करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल अगर यही कंसीडर करेंगे हम लोग जो पहले इसमें कंसीडर किया था, डायरेक्शन शो करते हैं अभी से। एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसके बीच में से। ठीक है। ठीक है। अभी ये लाइन किस किस को ड्रॉ हो रही है? तो सी हियर, ये क्या है हमारा? +1 है, राइट? ये +1 है, ये अप साइड है मीन्स -1 है, और ये भी क्या है हमारा? +1 है, राइट? 3 इसमें ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे। इसका नंबर क्या है? पॉजिटिव, इसका क्या है? निगेटिव, और इसका क्या है? पॉजिटिव। सो अगर इसके हम लोग सम करते हैं तो व्हाट इज़ द सम? 1 - 1 दैट इज़ 0 +1 1। ठीक है। ये क्या हो गई? सम नॉन ज़ीरो हो गई, इसीलिए वो पॉइंट कहाँ पे रिसाइड करता है? इनसाइड रिसाइड करता है। क्लियर? इज़ दिस क्लियर? नाउ सेम अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, सो सी हियर, इसका नंबर क्या है? पॉजिटिव, और इसका नंबर क्या है? -1। ठीक है। सो 1 - 1 बिकम्स 0। ठीक है। तो ये 0 है, मतलब व्हाट? आउटसाइड द पॉलीगॉन, दैट पॉइंट्स रिसाइड आउटसाइड द पॉलीगॉन। सो क्लियर? सो क्लियर इनसाइड टेस्ट मेथड। सो इनसाइड टेस्ट मेथड से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि वो पॉइंट इनसाइड द पॉलीगॉन लाई करता है या आउटसाइड द पॉइंट लाई करता है। वो फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 मेथड्स यूज़ किए, इवन ऑड मेथड एंड वाइंडिंग नंबर मेथड। सो क्लियर? सो